السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے بدتمیز عشق کی، جس کے رائٹر ہیں رضا نوری۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ لیٹس سٹارٹ۔ بہت کمزور ہوں میں اس شہر میں، ہو سکا اب تک نہ میرا فیصلہ، کب سے زیر غور ہوں اس شہر میں۔ آج می جان نے کو جو کچھ بھی کہا، اس میں سے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ یہ سب وہی باتیں تھی جو پچھلے کئی برسوں سے سنتی آئی تھی، اسی لیے سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ لیکن آج کل کی اسے بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ آج نیا یہ تھا کہ آج سے پہلے یہ باتیں وہ لوگ کرتے تھے جو اس کے لیے کچھ نہ تھے، جن کے ہونے نہ ہونے سے شانزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پر می جانی، وہ تو اس کی ماں تھی، تو پھر وہ کیسے یہ سب بول سکتی تھی؟ وہ تو اس کے لیے سب کچھ تھی۔ یہ بات اس کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ بار بار صرف ایک ہی جملہ کانوں سے ٹک رہا تھا، تو میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ گھر سے نکل تو آئی تھی، پر اب راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ کیا دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو اس کو بغیر پہچان کے اپنا سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کہاں سے لائے تھے اسے؟ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہیں تو کہاں ہے؟ کیوں چھوڑ دیا اسے اس دنیا کے رحم و کرم پہ؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس ظالم دنیا کو؟ کیا وہ کسی کا گناہ ہے؟ یہ کسی پہ ہوئے ظلم کی داستان؟ یہ بات تو صرف پاپا ہی جانتے تھے، اور وہ یہ کیسے پوچھتی ان سے اتنا؟ وہ اتنا اسے چاہتے جو تھے۔ وہ درد کی انتہا پہ تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اس کی حالت جان سکتا تھا۔ اس وقت جو وہ تکلیف محسوس کری تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہیں دور کسی جزیرے پہ چھوڑ دیا گیا ہے، بے یار و مددگار۔ کسی نے اس کے پورے جسم پہ چاقو سے کٹ لگا دی ہیں، اور اب ان میں سے خون بہ رہا ہے، اور خون کی ہر بوند کے ساتھ اس کی جان بھی نکل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس پہ نداری چھا گئی تھی، اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی۔ خون بہ جانے کی وجہ سے کیڑے مکوڑے آنے لگے۔ اب کیڑے اس کے جسم پہ رینگ رہے تھے۔ ان کے رینگنے کی سنسناہٹ وہ اپنے جسم پر محسوس کر سکتی تھی، پر انہیں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا جسم ان کیڑوں کی خوراک بننا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے نوچ رہے تھے، پر یہ تکلیف اس کے دل میں اٹھنے والی تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اسے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن شدت غم سے وہ نڈھال ہوئی تھی۔ اس کے آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے، آوازیں ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ دماغ کی نسیں ایسے تنی تھی جیسے ابھی ان میں دھماکے ہونے لگیں گے۔ وہ یونیورسٹی آ گئی تھی، پر کیسے آئی تھی؟ یہ یہاں تک کا سفر اس نے کیسے طے کیا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ابھی تک اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ آواز تھی می جانے کی۔ وہ کلاس جانے کی بجائے لائبریری کے پچھلی طرف آ گئی تھی۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی، اس لیے وہ اکثر یہاں پائی جاتی تھی۔ یہاں خاموشی سے بیٹھ کر وہ پڑھنے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن ابھی وہ اپنی کیفیت چھپانے کے لیے یہاں آئی تھی۔ فی الحال اس میں کسی کا سامنا کرنے کا کوئی حوصلہ نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زارا، مہک یا صبا اس کو ایسے دیکھیں، کوئی سوال کریں۔ وہ کیا بتائے گی انہیں؟ اس سے بہتر تھا وہ یہاں بیٹھے، تاکہ کسی بھی نظروں کے سامنے نہیں آنا پڑے۔ اور اس وقت چھپنے کے لیے سب سے اچھی جگہ یہی تھی۔ وہ پلر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، اب سے کچھ دیر ہونے والے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر رومال رکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزاحمت کرتی، رومال میں بس ایک کلوروفارم نے ہوش کی دنیا سے بےگانہ کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر یونیورسٹی کے پچھلے رستے سے باہر لے جا رہے تھے۔ آج اس کا آفس کا پہلا دن تھا۔ وجی بھائی اسے اپنے دوست عمیر سے ملوا کر جا چکے تھے۔ عمیر بھی بہت اچھے تھے، بالکل وجی جیسے نرم مزاج، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کمپنی کے دو مالک تھے، ایک عمیر اور دوسرا عثمان۔ یہ بات اسے عمیر نے ہی بتائی تھی۔ یہ کوئی روایتی جواب نہیں تھی، اسی لیے اس کا انٹرویو ہوا ہی نہیں تھا۔ عمیر نے اسے کام سمجھا دیا تھا، اور ساتھ ہی آفس کا فون بھی دے دیا تھا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اگر مسئلہ ہو تو وہ کال کر کے پوچھ سکے۔ یہ آفس اسسٹنٹ کی جاب تھی، یا دوسرے لفظوں میں سیکرٹری کی جاب کہا جا سکتا ہے، اسی لیے اس کا زیادہ تر وقت باس کے ساتھ ہی واسطہ پڑنے والا تھا۔ عمیر کو بھی دیکھ کر اسے کافی تسلی ہوئی تھی کہ دوسرا باس وہ ابھی تک نہیں ملا تھا، پر عمیر نے اس سے کافی حوصلہ دیا تھا۔ اس سے آفس کا ماحول بہت اچھا لگا تھا۔ ہر شخص اپنے کام میں ہی مگن اپنے کام کرتے پھر رہے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پہ آ گئی تھی، جو باس کے روم کے باہر ہی لگی ہوئی تھی، ایک کیبن کی شکل میں۔ اسے اپنی سیٹ بہت پسند تھی۔ اس کے پچھلی دیوار کی پوری شیشے کی تھی، جہاں سے مین روڈ صاف دکھائی دیتا تھا۔ عمیر باہر گیا تھا اسے منع کر کے کہ کوئی بھی بلا ضرورت اندر نہ جائے۔ اس کے جانے کے بعد کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو اسے کچھ وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شانزی کی وجہ سے پریشان تھی۔ اگر کوئی اور دن ہوتا تو اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہونا ہوتا، پر ابھی وہ کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، شانزی، اس کی پیاری بہن۔ اسی تائیمہ نے اسے دل سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور اپنی ماں کے بولنے پر افسوس۔
ताइमा तो हमेशा ही ऐसे कहती थी, पर मीजा नहीं, वो तो ऐसी ना थी, तो फिर क्यों उन्होंने इसके सामने शानजे को इतना सब कुछ कह दिया? वो अभी ढेरों सोचना चाहती थी, लेकिन तभी इसके सामने से कोई गुजरा। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? शानजे ने इसके पीछे जाकर रोका था। मोहतरमा, मेरा नाम। मैंने आपका नाम नहीं पूछा। अरेजे ने मुंह बनाया था। आप शायद नई आई हैं, तभी मुझे नहीं जानती। मैं, हाँ, हाँ, मैं नई आई हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे बेवकूफ़ बनाकर इस तरह से ऑफिस में घुसे चले जाएं। आपको पता है कि नहीं कि किसी ऑफिस में जाने से पहले इसकी इजाज़त लेते हैं, यहाँ कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए। इसने बात काटी। ओके फाइन, मुझे उमेर से मिलना है, वो कहता है। रूम की तरफ बढ़ा कि वो फिर से सामने आ गई। आपको मेरी बात समझ नहीं आई? आप अंदर नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? इसको सच में झटका लगा था। आप ऊंचा सुनते हैं क्या? कितनी बार कहूँ? मैंने आपको कहा भी आप अंदर नहीं जा सकते। अरेजे ने इसको बेचारगी से देखा था। क्यों? लंबा कद, साफ सुथरा रंग, डार्क ब्लू सूट में वो जो भी था लाजवाब था। अरेजे ने दिल में एतराफ़ किया था, माथे पर बल और आंखों में हैरानी लिए वो इसे ही देख रहा था। देखें, मेरे सर अपने ऑफिस रूम में नहीं है, और विदाउट परमिशन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। अरेजे ने अटल लहजे में बोला। वो अब दिलचस्पी से इस नाजुक लड़की को बहुत गौर से देख रहा था। गंदमी रंग, लाइट ब्राउन आंखें, काले बाल, सिलीके से दुपट्टा लिए वो बहुत क्यूट लग रही थी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अरेजे को इसके देखने पर गुस्सा आया था। आपने तो कहा था देखें। अब इसे शरारत सूझी थी, जबकि अरेजे झनक गई थी। वो असल में मेरा मतलब वो नहीं था। अरेजे को कुछ समझ ना आया तो कि वो क्या बोले। आप यहाँ बैठे, मैं सर से पूछती हूँ, वो कहती हुई चली गई थी, जबकि इसने अपनी हंसी दबाई थी। वो नहीं चाहता था कि पहले दिन ही वो परेशान हो जाए। अरेजे ने उमर को कॉल मिलाई, जो दूसरी तरफ से उठा ली गई थी। सर कोई आपसे मिलने आया है, वो सीधा आपके रूम में जा रहा है, बहुत मुश्किल से रोका है। इसे पूरी बात एक ही सांस पे कह दी, जबकि कंगियों से वो इसे ही देख रही थी, जैसे वो कोई चोर हो। कौन है? कोई क्लाइंट है? सर, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ओके, आप नाम पूछो। कौन है? एक मिनट सुने। सर, सुने। वो जो फ़ोन में मगन था, इसकी आवाज़ सुनकर मगन रहा, हालांकि वो इसे बार बार इसकी तरफ देखता हुआ देख चुका था। ना जाने क्यों, पर इसे इसका सुने कहना बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो अनजान बना रहा। सुने, सुनिए, मैं आपसे बोल रही हूँ। अरेजे ने इसके सामने खड़े होते हुए कहा। जी बोलिए। इसने फ़ोन से नजर हटाकर देखा। आपका नाम क्या है? अरेजे के चेहरे पर चुंचलाहट थी। उस्मान मीर, सुकून से जवाब दिया गया। ओ, वो जाने के लिए मुड़ी थी कि रुक गई। उस्मान मीर, इसके जेरे लब नाम दोहराया। नहीं, मेरे कान बज रहे हैं। इसे खुद को तसल्ली दी, इसीलिए वो इसकी तरफ मुड़ी। उस्मान मीर, इसने कंफर्म किया था। जवाबन हाँ में सर हिलाया गया। अरेजा को लगा इसके पाँव से जमीन धंस गई है। सेकंड के 1000वें हिस्से में वो पहचान गई थी कि ये वही उस्मान है, इसका दूसरा बॉस। शानजे के मुंह पर 12 बजे थे। फ़ोन शायद कटकर दोबारा किया गया था, तभी बज रहा था, पर अरेजे को तो जैसे होश में ही नहीं थी। तभी वो आराम से चलता इसके पास आया, इसके हाथ से फ़ोन लेता चला गया। अरेजे को जैसे होश आया था। अब वो इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहले ही दिन ने इतना बुरा तासुर दिया था इसने। अरेजे को अब एक और परेशानी ना आ गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, सॉरी बोले या नहीं। अगर इसने सब कुछ उमैर को बोला तो कितनी शर्मिंदगी होगी। कितना कुछ था, वो इसके भाई का दोस्त था। वो नहीं चाहती थी कि उमैर से होती ये बात वजीद भी तक भी पहुंचे, इसीलिए वो उमैर के रूम की तरफ गई, और जहां वो बैठा था अंदर से काफ़ी गुस्से में बोलने की आवाज़ आ रही थी। और इसे मजीद परेशानी हुई इससे पहले कि वो पलटती। उस्मान की आवाज़ ने रोक दिया। जी बोले, कुछ बोलना था आपको? वो मैं दरअसल, मैं आपसे, इसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे। अब आप कुछ बोलेंगी या मैं मेरा वक्त यूं ही ज़ाया करती रहेंगी? उस्मान का गुस्सा अभी भी बरकरार था। शानज़ा को शर्मिंदगी हुई। सॉरी सर, फॉर बहुत। वो रुकी नहीं थी, कहती हुई चली गई थी, जबकि उस्मान को पछतावा सा हुआ था। वो पापा का पता नहीं लगा सका था, इस बात का गुस्सा खामखा इस बेचारी पे निकाल दिया था। वो इसके कैबिन की तरफ गया था, वो किसी काम में बिजी थी। अरिज़े इसको देखकर खड़ी हुई थी। जी सर, कुछ चाहिए आपको? चेहरे पर अभी भी शर्मिंदगी का तासुर था। उस्मान को अपने रवैये पे शर्मिंदगी हुई। ये ड्राइव आप उमर को दे दीजिएगा, याद से। वो जो इसे सॉरी कहना चाहता था, एक नज़र इस पर डालता बाहर चला गया था, जबकि रेजा ने सुक्का सान लिया था। इस वक्त वो शहर के 3rd क्लास इलाके में खड़े थे। दर्द की एक शदीद लहर इनके अंदर उठी, तो वो यहाँ कहीं रहती है। वो जो भी ज़रा सा डस्ट बर्दाश्त नहीं करती थी, तो यहाँ इस मिट्टी के ढेर में रह रही थी। माजी के सारे यादगार पल इनकी आंखों में फिल्म की तरह चलने लगे थे। हुसैन ने दुख से सोचा था, न जाने कैसी होगी, किस हाल में होगी। वो सोचते हुए पतली तंग गलियों में से गुजर रहे थे। वो गली इसकी तारीफ में इजाफा कर रही थी। तो तुम यहाँ हो ज़ैनब? सोचा नहीं था तुम्हें ऐसी जगह मिलेगी, पर अफसोस, सद अफसोस। वो इसके अलावा हुसैन कर भी क्या सकते थे, और वह इनसे मिलने के लिए बेकरार हो जा रहे थे। एक बार वो मिल जाए तो गुजरी मुसीबत का हर अजाला कर दूंगा। बस एक बार मिल जाए।
मैं वापस घर ले जाऊंगा। दिल में हजारों उम्मीदें लिए वो एक एक शख्स से ज़ैनब का पूछा था, पर यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो ज़ैनब को जानता होता। थक हार कर वो वापस जाने लगा कि एक आदमी इन्हें आवाज़ दी, साहब, साहब जी। वो भागता हुआ गाड़ी तक आया था। सुना है आप किसी को ढूंढ रहे हैं? इसने हाँफते हुए बोला। हाँ, तुम्हें इन सबसे क्या मतलब? हुसैन ने त्योरी चढ़ा गई थी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरा नाम असलम है, इसी बस्ती में रहता हूँ। वो अब तक हाँफ रहा था। लेकिन क्यों? हुसैन को कुछ खटका था। साहब, इसके बदले में आपको मेरी कुछ मदद कर देना। हुसैन इसका मतलब अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए जेब से हजार हजार के कई नोट निकाल कर दिए थे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो इसी बस्ती में खुआर हो रहे थे, पर अभी तक कोई सुराग हाथ ना लगा था जिसे कुछ पता चलता। इसका नाम ज़ैनब है और ये मेरा फ़ोन नंबर। जितना जल्दी मेरा काम करोगे इतना ज़्यादा इनाम पाओगे। और आपकी है कौन? कोई निशानी? इस आदमी ने नाम सुनते बोला। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कौन है और डिटेल में तुम्हें फ़ोन पे दे दूंगा। हुसैन कहते हुए गाड़ी में बैठे और स्पीड वहां से निकल गए थे। गाड़ी शहर से होते हुए इस सुनसान रास्ते पर थी जो समंदर की तरफ जाता था। गाड़ी हॉक्स बे की तरफ ले लो, ड्राइवर को हदायत मिली। शानजी अभी तक क्लोरोफॉर्म के जेर असर थी। ड्राइवर के अचानक टर्न लेने पर वो साइड पे लड़क गई। इससे पहले कि इसका सर विंडो से टकराता, गर्दन के पीछे से अपना हाथ निकालकर यूसुफ ने विंडो और इसके सर के दरमियान अपना हाथ कर दिया था, जिसकी वजह से सर यूसुफ के हाथ से टकरा गया। यार, अब आगे क्या करना है? उठा तो लाए हैं इसे, मोहसिन जो 1 घंटे से ड्राइव कर रहा था कुताते हुए बोला। वो मैंने अभी नहीं सोचा। इसके मुकाबले यूसुफ खासा मुतमईन था। तभी शान से लड़कर इसके कंधे पर गिरी। एक तो इसे सुकून ही नहीं है, कभी यहाँ गिरती है और कभी वहां। यूसुफ इसे संभाल संभाल कर तंग आ गया था, इसीलिए झुंझलाते हुए बोला, उमर को पूछो। बस रुक जाओ। और वो रहा, गाड़ी यहीं रोको। उमर ने मोहसिन को बोला। वो इसको गाड़ी से निकालकर हाट में ले आए थे। चल पाँव बांध इसके। यूसुफ ने रस्सी मोहसिन की तरफ उछाली। अबे पागल है क्या? आराम से बांध, कहीं कुछ हो ना जाए। उमर ने मोहसिन को डराया। अरे हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि रस्सी ढीली कर देता हूँ। तुम दोनों पागल हो? यूसुफ ने हैरत से देखा। तू वो छोड़, इसकी आंखों पे पट्टी बांध, वरना हम तीनों को फंसाएगी। उमर का डर काफी था। ओए आराम से, कहीं नहीं उठने जाए। उसी ने पट्टी बांधे यूसुफ को अलर्ट करना फर्ज समझा। यार, यूसुफ कितना क्लोरोफॉर्म सुखाया है, ये उठ क्यों नहीं रही? उमर ने नया खदशा जाहिर किया। चुप हो जाओ, नाम क्यों ले रहा है और बात ऐसे कर रहा है जैसे हम प्रोफेशनल किडनैपर्स हैं। मुझे क्या पता कितना मेरा पहले तजर्बा है। यूसुफ घूरते हुए बोला। तो क्या जरूरत है किडनैपिंग की? और क्या है ये सब? उमर ने जवाबन घूरा था। कौन कौन है? शानजे को होश आने लगा था। यूसुफ ने उंगली रखते हुए खामोश होने का इशारा किया। मोहसिन उमर दोनों गड़बड़ा गए थे। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? हेल्प, कोई बचाओ। कहाँ हो? मैं अब वो चिल्ला रही थी। शानजी पूरी तरह होश में थी। यूसुफ ने अपनी जेब में से रुमाल निकाला और इसके मुंह पर बांध दिया। अब इसके हाथ पीछे की तरफ करके बांधो। तभी शानसे ने इसका हाथ पकड़ा। इसके हाथों की नरमी यूसुफ ने महसूस की थी। इसकी हार्ट बीट मिस हुई थी। नहीं, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुमने देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। इसने दिल में सोचा था। वो तीनों अब गाड़ी से बैठ गए थे। यूसुफ गाड़ी से उतरकर चीजें निकालने लगा था। ओए, अब कहाँ? यूसुफ ने इसकी हरकत का खासा नोटिस लिया था। यार, ये कुछ खाने पीने का सामान वहां रख देते हैं, पता नहीं कितनी देर में कोई आ रहा है इसे बचाने। अरे वाह रे विलन, ये तो हीरो किस टाइम पे बन गया। बेटा, पिकनिक ही नहीं मनाने आए? मोहसिन ने गौर से यूसुफ की बदलती हालत को नोट किया था। बकवास ना कर। ठीक है, मुझे इससे सबक सिखाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे भूखा प्यासा ही मार दूं। वो कहता दोबारा हाट की तरफ बढ़ गया था। शांजे अभी तक शोर कर रही थी। खामोश, शोर मत करो। अभी तभी तभी आवाज यूसुफ की आवाज बदलने पर बोला। ये पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पी लेना और चिल्लाओ मत। ऐसा ना हो कि कुत्ते तुम्हारी आवाज़ सुनकर डर जाएं। मतलब है आ जाएं, और अगर उन्होंने तुम्हें काट लिया तो जिम्मेदार तुम खुद होगी। यूसुफ से डराता हुआ चला गया था। चलो चलते हैं। ऐसे क्या घूर रहे हो तुम दोनों? मैं कोई इससे पैसे नहीं लूटने वाला। इसने उमर और मोहसिन को घूरता देकर बोला। पैसे नहीं लेने तो फिर क्या करना है? तो कोई चीप हरकत तो। शट अप, मैं सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। यूसुफ ने मोहसिन को मलामती नजरों से देखा। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो? उमर ने खदशा जाहिर किया। कुछ नहीं होगा, यहाँ आसपास मछेरों की बस्ती है, कोई ना कोई मदद कर देगा। अब चलो भी। इसने मोहसिन को पिछली सीट पर बैठते हुए बोला। गाड़ी चल पड़ी थी। यूसुफ ने एक नज़र हट की तरफ देखा और फिर ग्लासेस पहन लिए, जैसे इसकी आंखों में दिल की हालत जाहिर होने का खदशा। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि मोहसिन ने इसकी आंखों के बदलते तासुरात देख ली हैं। गाड़ी अब समंदर की हदूद से निकल गई थी, लेकिन एक बेचैन सी खामोशी थी
जिससे इन तीनों को घेर रखा था। यूसुफ को बार बार शानजे की आवाज़ें आ रही थी जो इसको बेचैनी में इजाफा कर रही थी। हालांकि इसने खुश होना चाहिए था कि इसने बदला ले लिया, पर खुश नहीं था। लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता था। शानजे ने अब कोशिश करना बंद कर दिया था। वो समझ गई थी कि आसपास कोई नहीं है, लेकिन अभी ये तक ये समझने कासिर थी कि ये लोग कौन है और इसे यहाँ क्यों लाए हैं। दीवार से टेक लगाए वो मसरूफ जंग में थी जब इसके कानों में भद्दी सी आवाज़ टकराई, अबे देख लड़की। किसी ने इसकी आंखों में पट्टी खोली थी। शानजे बेयकीनी से सामने 3 मस्टंडों को देख रही थी। अजीब काले काले से गंदे कपड़े पहने वो लोग बहुत खौफनाक लग रहे थे। इसकी आंखों में गंदी चमक शानजे का खून खुश करने के लिए बहुत थी। वो ना चाहते हुए भी शानजे को सोचे जा रहा था। थक हार कर इसने आंखें बंद की, बैक सीट से सर टिका लिया। शानजे का चेहरा इसकी आंखों में घूम गया था। वो आंखें खोलकर बाहर देखने लगा। एक बेचैनी सी थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो तीनों खामोश थे, कोई भी किसी से भी बात नहीं कर रहा था। एक अजीब सन्नाटा तारी था, मौत का सन्नाटा। और बिलाखिर इस सन्नाटे को यूसुफ ने ही तोड़ा था। गाइस, आई थिंक मैंने गलती कर दी है। वहाँ ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। वो दोनों इसे हैरत से देख रहे थे। वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोलता चला जा रहा था, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। इससे वो एक धमाका किया था। कम अज कम उमर को तो यही लगा था। जबकि इसकी बात पे मोहसिन ने भी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तो वापस जाएगा? तो जानते तेरे वापस जाने से क्या होगा? उमर परेशान हो गया था। हाँ जानता हूँ, पर मैं इतना बेहिस कैसे हो सकता हूँ? कैसे इसे छोड़ के जा सकता हूँ? ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, हम वापस नहीं जाएंगे। बस तू जानता है ना, इसे एक फसाती लड़की है वो, और वो लाजमी कोई फसाद खड़ा करेगी। और मैंने इसे समझाने की कोशिश की, कुछ भी हो मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो जो सजा देगी मुझे मंजूर है, पर मैं ऐसे नहीं जा सकता। शायद वो उमर की बातें नहीं सुन रहा था, तभी एक ही राग लाप रहा था। तो समझ नहीं आ रहा है मेरी बात? उमर चीखा था। तकरीबन मैं समझ रहा हूँ यार। यूसुफ की आवाज़ में इतनी बेचारगी थी। मेरा ख्याल है यूसुफ ठीक कह रहा है। इसकी बेचारगी देखकर मोहसिन से रहा ना गया। तब वो जो काफ़ी देर से इनकी बात सुन रहा था, आखिरकार बोल ही पड़ा, चल शानजे को लेकर आते हैं। यूसुफ ने तशक्कुर निगाहों से इसे देखा था। नहीं, मैं खुद ही जाऊँगा, तुम दोनों वापस जाओ। ये मसला मैंने बनाया तो मैं ही से हल करूँगा। यूसुफ ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। ठीक है, तू गाड़ी ले जा। इसने चाबी यूसुफ को दी। फिक्र मत कर, हम लोग चले जाएंगे। वैसे भी क्रीम वाले किस दिन काम आएंगे? उसी ने इसकी आंखों में छुपा सवाल पढ़ लिया था। तभी इसको हौसला देते हुए बोला। यूसुफ ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया था। वो सच में एक बेहतरीन दोस्त था और गाड़ी लेकर वापस सी की तरफ मुड़ा था। कौन हो तुम लोग? इसने डरते डरते पूछा था। वारे किस्मत, हम तो चोरी करके भागे थे, यहाँ तो खजाना हाथ लग गया। वो तीनों आपस में मगन थे, तभी इसकी बात का जवाब ना दिया। इतने में एक आदमी जमीन पे शानजे के पास बैठा और इसके पाँव पर हाथ फेरने लगा। शानजे को इस वक्त इसका हाथ फेरना अजीब खौफ में मुब्तला कर रहा था। देखो, मुझे जाने दो प्लीज़। इस आदमी की गंदी नज़रों से शानजे को अपकाई आने लगी थी। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ। शानजे ने अपने बंधे हुए दोनों हाथ इसके आगे जोड़ते हुए कहा। जहाँ इससे झपट कर पकड़ा, शानजे करंट खाकर पीछे की तरफ हटी। वह ऐसा ऐसा खिसक कर पीछे हो रही थी और वो आदमी इसके करीब आता जा रहा था। औरत में अल्लाह ने एक बड़ी खूबी इसकी छठी हिस्स रखी है, जो बर वक्त इंसान को नियत और नज़र पहचानने में मदद करती है। औरत की हिस्स किसी घंटी की तरह होती है जो खतरे का एहसास पाकर बजने लगती है। शानजे के कानों में भी घंटे की घंटियां बज रही थी। इसका चेहरा गुस्से और परेशानी से, खौफ से लाल हो रहा था, पर इस वक्त इसे होश नहीं था। इसे होश से नहीं, जोर से काम लेना था, जो बहरहाल शानजे के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। अगर कोई और वक्त आता तो वह इनको अच्छा खासा सबक सिखा चुकी थी, लेकिन किस्मत इस पे मेहरबान नहीं थी और इस वक्त इसे किसी मदद की सख्त ज़रूरत थी। इसके अंदर हर्षर बढ़ था। इन आदमियों की आंखों में जलती हवा से इसको खौफजदा कर रही थी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुसीबत से आज़ाद कर दे, वरना मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके मेरी हिफाजत फरमा। शानजे दिल में दुआएं मांग रही थी। इस वक्त इसे कोई रास्ता नहीं आ रहा था, और बेशक जब हर दर बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही दर खुला रह जाता है। जिस दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, वो तो अपने बंदों की दुआएं भी सुन लेता है, जो ज़बान तक आती भी नहीं। तो फिर वो शानजे की दुआओं को क्यों ना सुनता? वो आदमी मस्जिद शानजे को तंग करता है। इतने में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई बहुत रैश ड्राइव करता अचानक ब्रेक लगाता है। पीछे खड़े इन दोनों आदमी गड़बड़ा गए थे, इसीलिए इनमें से एक ने अपने साथी को बोला था, मुझे लगता है कोई आ गया। ऐसा ना वो इस लड़की को हमसे लेने आया हो, चलो इसको ले चलो यहाँ से। इसका साथी बोला था। वो तीनों अब इसे पकड़कर दूसरी तरफ हाट की तरफ ले जाने लगे, जो कुछ फासले पर ही था। हट के नाम पर 4 दीवारी थी, शायद सामान रखने की जगह। शानजे की नज़र कैन पर पड़ी, वो इसको लात मारना चाहती थी। इन तीनों में से नज़र बचाकर जैसे इसने पाँव आगे किया, एक गुंडे ने आगे बढ़कर कैन हटा लिया। ज़्यादा चालाकी की तो गला काट दूंगा, इसे चाकू दिखाते डराया था। वो तीनों इसको वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगे, जबकि शानजे खुद को छुड़वाने की कोशिश में जुट गई थी। अभी इन लोगों की जदोजहद जारी थी। अचानक शानजे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वो तीनों हैरान थे, अब क्या करें? ये तो बेहोश हो गई। इनमें से एक आदमी गुस्से में बोला,
ऐसा करते हैं, बाहर देखते हैं, अगर कोई नहीं है तो गाड़ी में डाल कर ले चलते हैं। एक दूसरे आदमी ने मशवरा दिया और वो तीनों बाहर निकल गए। इसने दूर पे गाड़ी रोकी और भागता हुआ हट की तरफ आया, लेकिन जान से वहां नहीं थी। इसकी आंखों के सामने जमीन और आसमान घूमने लगे थे। यूसुफ को लगा जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया। यही तो छोड़ के गया था, कहाँ चली गई थी? यूसुफ को याद था इसके हाथ पांव बंधे थे, वो कहाँ जा सकती थी। इसकी आंखों में नमी आने लगी थी। इसने हाथ एक एक जगह छान मारी थी, पर वो नहीं मिली थी। जमीन निकल गई या आसमान खा गया। इसकी नज़र शानजे के दुपट्टे और जमीन पर बने निशानों पर उड़ रही थी, जो इस बात की निशानी थी कि कोई इसे घसीटता हुआ यहाँ से ले गया है। वो पागलों की तरह अपने दुपट्टे पे लपका था, इसके दुपट्टे पे लपका था। वो हट के चारों तरफ भाग रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। रेत में धंसे पत्थर इससे नजर नहीं आए और वो इन पे मुंह के बल गिरा था। इसके हाथ रगड़ने और छिल गए थे, जहाँ से खून साफ निकल रहा था। इससे उठना चाहा तो घुटने में दर्द की शदीद लहर थी। वो दोबारा वहीं गिर सा गया था। नहीं अल्लाह जी, इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। मैं कैसे जी पाऊंगा इस तकलीफ के साथ कि वो मेरी वजह से मुश्किल में फंस गई है। अल्लाह जी मुझे माफ़ कर, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने किए की सज़ा इसको ना देना। वो दुआएं मांगता ज़मीन पर घुटनों पे बैठ गया था, जैसे कोई शिकस्त और इंसान किसी को जुए में अपना सब कुछ हार बैठता है। वो इसका दुपट्टा हाथों में लिए बुलंद आवाज़ में रो रहा था। अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं कैसे माफ़ करूँगा खुद को? मैं जानता हूँ मुझसे गलती गलती नहीं, गुनाह हुआ है और इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, पर ऐसे नहीं। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ इसे तकलीफ भी नहीं देख सकता। वो ठटका था अपने दिल की आवाज़ पे। मोहब्बत? वो रोना भूल गया था। ओह, तो ये लड़ाई नहीं, मोहब्बत है जो हमेशा इसे उलझने पर उकसाती है, हमेशा इसके आसपास रहना चाहती है। तो ये मोहब्बत है जो इसे हमेशा नज़रों के सामने चाहती है। यूसुफ के लिए ये एहसास बिल्कुल अलग था, तो इसलिए मैं वापस आया हूँ, तो इसलिए मैं इसे तकलीफ में तड़पता नहीं देख सकता। तो ये पछतावा नहीं है, ये लड़ाई भी नहीं है, ये अना थी। और अब अना का खोल चटक रहा था। मोहब्बत के रंग नजर आने लगा था। कभी कभी अल्लाह आपको मुश्किल में डालकर आजमाता है, इसलिए नहीं कि वो आपको सजा देता, बल्कि इसलिए कि वो आपके अंदर छुपे हकायक से पर्दा उठाता है, और वो हकायक जो अक्सर हम खुद भी नहीं जानते। और इस वक्त यूसुफ पे भी कुछ ऐसे हकायक का इंकशाफ हुआ था। इसे लगा था कि अब कभी शांसे को नहीं देख सकेगा, और इस ख्याल ने ही इसकी सांसों को रोक दिया था। सिर्फ एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं इससे माफ़ी मांग लूंगा। वो बुरी तरह रो रहा था। यूसुफ के हवासों पे वो खौफ तारी हो रहा था। इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये सब इतना महंगा पड़ने वाला है। मैं मानता हूँ ये सब मेरी गलती है, पर अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। तू अपनी शान के सदके मैंने कुछ अच्छा किया है, तो इसके बदले मुझे शान से मिला दे। इसकी हिफाजत फरमा। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। और एक बार फिर उठा। अजीब वहशत इस पे तारी हो गई थी। घुटने में उठती टेसों की परवाह किए बगैर वो एक बार फिर भागने लगा था। इसे अपने पास एक और जगह नजर आई जो हट से मिलती जुलती थी। अब वो इसकी जानिब चला गया था। शान से बेहोश होने का ड्रामा कर रही थी। इनके जानते ही इसने आंखें खोलकर तसल्ली की। वो वहां नहीं थे। कैसे रोकूं उसे? कहीं ये कोई जो भी है चला गया न? इसने गाड़ी वाले के बारे में सोचा। वो इधर उधर ही देख रही थी जब इसकी नज़र पीछे पड़े बहुत सारे कैंस पर पड़ी। इसने मौका का फ़ायदा उठाते वो कैंस पाँव पे मारने लगी। इसे यकीन था कि आवाज़ सुनकर जो कोई भी है वो ज़रूर आएगा। वो सब कैंस नीचे गिरा चुकी थी और अब वो अपने हाथ खोलने की कोशिश में थी। यूसुफ ने कैन गिरने की आवाज़ पर चौंक कर देखा था। आवाज़ वहीं चारदीवारी से आई थी और अब वो अंदर की जानिब जा रहा था। किसी की दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। एक अनजाने खौफ से इसके पाँव जकड़ ली थी। वो कदम को उठाना मुश्किल हो रहा था। ना जाने सामने कैसा मंजर आने वाला। हर वक्त हर कदम के साथ इस पर खौफ और ज़्यादा इजाफा हो रहा था। वो जितनी दुआएं मांग सकता था मांग रहा था, और अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। इसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। वो शान से थी। हाँ, वो शान से थी, शान से शान। जबकि वो सामने से आते यूसुफ को देखकर हैरान रह गई थी। यूसुफ ने सूखा सांस लिया था। वो सही सलामत थी और इसे अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। एक सुकून था जो यूसुफ ने अपने अंदर उतरता महसूस किया था। यूसुफ के सर से एक बहुत बड़ा बोझ था जो हटा था। यूसुफ ने दोनों हाथ से बाल पीछे पकड़े और दीवार से टेक लगाई। एक बेसाख्ता हंसी इसके लबों पे आई थी, जबकि शानजन इसे घूर घूर के देख रही थी। यूसुफ का इस तरह से देखना इसे बुरा लग रहा था। तुम यहाँ पे हो? यूसुफ मुंह से बेसाख्ता ही निकला था। वो आगे बढ़ा और शानसे के मुंह खोला। एक सिसकी शानसे के मुंह से निकली। क्या हुआ? बहुत टाइट था क्या? वो पूछ बैठा। अब वो घुटनों के बल जमीन पे बैठा शानजे के पाँव खोल रहा था, जहाँ रस्सी के वाज़ेह निशान थे। यूसुफ को अपने इस पर शदीद गुस्सा आया था। इसने नरमी से शानजे के पाँव को छुआ, जहाँ बहुत सी खराशें थी। शानजे डर के पीछे हुई थी। इस वक्त वो भी इसके लिए नाकाबिले एतबार शख्स था। इसने दुख से शानजे के सफाक चेहरे को देखा था। इसने अपना सर झटका था और यूसुफ को लगा था कि वो इसी का मुस्तहिक है। इसने पकड़कर शानसे को खड़ा किया। तभी इसकी नज़र इसके होठों पे पड़ी थी। इसका होठ रुमाल टाइट होने की वजह से साइड से थोड़ा कट गया था, जहाँ से खून निकल रहा था। यूसुफ दर्द की एक लहर महसूस की थी। इसे अपने आप पर शर्म आई थी।
तुम यहाँ कैसे? शानजे ने इसे जांचती नजरों से देखा था। वो मैं यहाँ यूसुफ के हाथ खोलता हुआ बोलने लगा। इससे पहले कि यूसुफ शानजे के हाथ खोलता या कुछ बोलता, वो लोग वहां पर पहुंच गए थे। वो भी शायद कैन गिरने की आवाज से समझ गए थे कि शानजे ड्रामा कर रही थी। क्या कर रहे हो तुम? गुंडों ने यूसुफ को पूछा। तुम लोग कौन हो? इससे सवाल के बदले सवाल किया। यूसुफ, ये वही किडनैपर थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया। वो अब ऐसे अनजान बने जैसे कुछ जानते ही नहीं है। शानजे ने यूसुफ को बिल्कुल शिकायत वाले अंदाज में बताया था। प्लीज यूसुफ, मुझे बचा लो प्लीज। वो परेशान थी, जबकि यूसुफ ने इसकी गलतफहमी पे सुक्का सांस लिया था। पर तुम यहाँ कैसे? शानजे ने यूसुफ की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, एक गुंडा आगे बढ़ा। चुप कर, वरना तुम दोनों को मारेंगे। चल, हाथ ऊपर कर। लड़की को छोड़, यहाँ से चलता बन। इन तीनों में से एक आदमी ने गुस्से से यूसुफ को बोला था। तुम लोग हाथ ऊपर करो, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। वो खुद को संभालते हुए उल्टा इन पे चढ़ दौड़ा था। कुछ पता नहीं था कि शानजे कैसा रिएक्ट करती। वो लोग जानते नहीं। जो भी हुआ, मैं कौन हूँ? कौन है तो? एक आदमी ने गुस्से से पूछा। मेरा नाम यूसुफ है, इस शहर का डीएसपी हूँ मैं। यूसुफ ने एक धमाके के किया, जबकि हैरत से शानजे का मुंह यूसुफ के इस साफ झूठ पे ही खुल गया था। अच्छा, लगता तो नहीं है, इन गुंडों में से एक बोला। जानते हो कानून के मुताबिक कि पुलिस वाले को पुलिस वाला ना मानना भी एक जुर्म है। इस पे तुम्हें उम्र कैद भी हो सकती है। यूसुफ ने इन्हें फिर धमकाया। ये कानून कब बना? इससे किसने बनाया ये कानून? एक आदमी ने डरते डरते बोला। मेरे पापा ने बनाया है ये कानून। वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। शानसे को थोड़ा हौसला हुआ, इसलिए अपनी घबराहट पर काबू पाने ते बोली। और अगर इन्हें पता चल गया ना कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है, तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तभी यूसुफ ने पॉकेट से फोन निकाला था। मैं डीएसपी यूसुफ मीर बात कर रहा हूँ। अब पुलिस वैन को लेकर हॉक्स पे आ जाए, यहाँ कुछ लोगों को अरेस्ट करना है। इसने इन तीनों आदमियों को घूरते हुए बोला था। देखो, हमने इसको किडनैप किया था। एक गुंडा जो थोड़ा घबरा गया था बोलने लगा, जबकि यूसुफ का दिल किया कि इसके मुंह तोड़ दे। जरूरी है कि पूरी बात बताई जाए। कोई सोचता समझता इससे पहले कि एक गुंडा शानजे के बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा था और इसके गले में बड़ा सा चाकू रख दिया था। तो पुलिस वाला है या जो कोई भी है, अब ये लड़की नहीं मिल सकती, यह हमारे साथ ही जाएगी। छोड़ दो इसे। यूसुफ ने गुस्से से देखा था। एक कदम भी बढ़ाया तो इसका गला काट दूंगा। वो कहते शानसे के बाहर की तरफ ले जा रहे थे। मेरी बात सुनो, मैं हूँ यहाँ, इसे बस जाने दो। यूसुफ की आवाज में मिन्नत थी। शानसे ने हैरानगी से इसे देखा था। इसे जाने दे? क्या हम इतने बेवकूफ लगते हैं तुझे? हाथ आया माल कोई भी जाने देता है क्या? देखो, इसे छोड़ दो वरना जाम अच्छा नहीं होगा। यूसुफ के इसके पीछे पीछे जा रहा था। यूसुफ अब इनसे बहस में मसरूफ था। तुम्हें जो चाहो मैं दूंगा, हमें जो चाहिए वो हम लेकर जा रहे हैं। इसके हुस्न का नशा अब यही उतारेगी। इसने खबासा से शानसे को देखा था, जबकि यूसुफ का दिल चाहा था कि इसका मुंह नोच ले। वो शानसे को लेकर वहां से निकल रहे थे कि जब यूसुफ चारों तरफ मदद के लिए कुछ ढूंढ रहा था। इसी वक्त यूसुफ की नजर एक बड़े पत्थर पर। यूसुफ ने पत्थर उठाया और इनमें से एक के सर पर दे मारा, जिससे इसका सर फट गया था। वो दर्द से चीखता हुआ भागा था। पत्थर ने अपना काम कर दिखाया था। वो गड़बड़ा गए थे। शानसे भागती हुई यूसुफ के पीछे छुपी थी, खौफ से इसके पीछे यूसुफ की शर्ट को पकड़ा हुआ था। फिलहाल इसे वो अपने और इन गुंडों के दरमियान दीवार की तरह लगा था। तभी चाकू वाला आदमी आ गया और यूसुफ को चाकू मारा। शानसे के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली थी जो दूर फिजाओं में गुम हो गई थी। हिना बेगम बहुत परेशान थी। शानसे अभी तक घर नहीं आई थी, जबकि इस वक्त तो वो घर आ जाती थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ जाती और हर बार मायूसी से वापस आती थी। अपने सुबह के रवैये पे इन्हें खुद भी दुख था, पर अब इसे बदला नहीं जा सकता था। लिहाजा फिलहाल वो सिर्फ शानसे के बारे में ही सोच रही थी कि कहाँ थी वो। अगर इसने खुद को कुछ कर लिया। नहीं, वो कमजोर नहीं है। दिल ने आवाज दी थी, अगर वो घर छोड़कर चली गई तो। दिमाग ने एक नया रास्ता निकाला। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी, इसके अंदर किसी ने मजाक उड़ाया था। हाँ, मेरी बेटी। कुछ आंसू टूटे थे आंखों से। वो मेरी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम मीजानी, रेजे ने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। लेकिन मीजानी तो अपनी ही दुनिया में घूमती। मीजानी, क्या हुआ? रेजे ने इनका कंधा हिलाया था। हाँ, वो चौंकी थी। वो शान से वो कुछ बोल ही नहीं सकी और रोने लगी। अरेजे ने परेशानी से माँ को देखा। मीजानी प्लीज बोले, क्या हुआ है? अरेजे कुछ परेशान हुई। तभी पीछे से आता वजी ठटक गया और अरेजे को ऑफिस से लेकर आया था। अब गाड़ी पार्क करके अंदर आया तो मीजानी के रोने पर रुक गया। क्या हुआ खाला जान, आप रो क्यों रही हैं? अरे होना क्या है, वो प्रोफेसर नहीं अभी तक नहीं आई, बस इसीलिए परेशान हो रही है। लो भला, जरा सी बात कर दी और मैडम घर आना ही भूल गई। और एक ये मेरी बहन है जो अल्लाह की गाय है, इसके गम में ही घुली जा रही है। पता नहीं कहाँ सैर सपाटे कर रही भी होगी। ताईजान फिर से शुरू हो गई थी। अरेजे से बर्दाश्त नहीं हो गया था वो कुछ बोलती, इससे पहले कि वजी बोल पड़ा था। जाओ रेजे, खाला के लिए पानी लाओ। और अम्मी, आप बस कर दें, कभी तो मौका देख लिया करें। खाला कितनी परेशान है और आपको अपने मसलों से फुर्सत नहीं है। सुबह का ड्रामा काफ़ी नहीं था जो आप फिर से शुरू हो गई हैं। वची झुंझलाया था। हर वक्त के चिक चिक से वो तंग आ गया था। माँ का लहजा बर्दाश्त ना कर सका, सो बोल बैठा। बेटा अपनी जुबान को लगाम दो, माँ हो तुम्हारी। आजकल बच्चे ज़रा कुछ कह दो तो सर पर सवार हो जाते हैं। ऐसे भी क्या कह दिया मैंने, बताओ भला?
یہ اچھی لڑکیوں کے طور طریقے ہیں کہ صبح گئی تھی اور اب یہ وقت ہونے کو آ گیا ہے. ارے میں پوچھتی ہوں کیا گھر کا راستہ بھول گئی ہے؟ اب وہ اچھی خاصی وجہ کو سنا رہی تھی. اس کی آواز پہ تایا اور انیکا بھی باہر آ گئے تھے. کیا ہوا بیگم، سب ٹھیک تو ہے؟ تایا نے تائی جان کو دیکھا. ارے ہونا کیا ہے، وہ لاڈلی آپ کے بھائی کی ابھی تک واپس نہیں آئی اور ذرا کچھ کہہ کیا دیا اور نکل پڑی گھر سے. میں کہتی ہوں شریفوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ آپ کا بیٹا چلا رہا ہے مجھے باتیں سنانے. اور وہ غصے سے جانے کیا کیا بولی تھی. امی بس کر دے، کیوں پیچھے پڑ جاتی ہیں آپ اس کے؟ بھائی امی نے کچھ غلط نہیں کہا. انیکا نے ماں کی ہمدردی کی. تم تو چپ ہی رہو، یہ سب تمہاری کرنے کا نتیجہ ہے. میں نے کیا کیا؟ انیکا نے انجان بننے کی زبردست ایکٹنگ کی تھی. تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے بھی کہاں ٹلنے والا تھا. بس کرو تم دونوں، چپ ہو جاؤ. تایا جان نے دونوں کو گھورا جبکہ وجی نے ملامتی نظروں سے انیکا کو دیکھا تھا. میری طرف سے بھاڑ میں جائے. جو اب اپنے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی. یہ لڑکی ہر روز کوئی مسئلہ بن گئی ہے. نہ جانے کہاں سے اٹھا کے لایا تھا اور تھوپ دیا ہمارے سروں پہ. مجال ہے جو کوئی بات سنتی ہو. یہی وجہ کہ مجھے اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. اور تو اور وہ تو اچھا ہے میرے سامنے نہیں آتی، ورنہ نہ جانے میں کیا کروں دوں. سمجھ نہیں آتا کہاں سے آئی ہے یہ مصیبت. میرا بس چلے تو میں آج اسے گھر سے چلتا کروں، لیکن نہیں، تم لوگوں نے اسے سر پہ بٹھا لیا ہے. تایا جان اپنی ہیرو میں بولے چلے جا رہے تھے. انہا بیگم نے اپنے اندر ایک ہوک سی اٹھتی محسوس کی تھی جبکہ وجی اور ریزے کو تایا کی باتوں سے سخت صدمہ ہوا تھا. کس کو چلتا کر رہے ہیں بھائی جان؟ باہر سے آتے حسن کی آواز نے سب کو چونک دیا تھا. پاپا. ارے بھاگ کر باپ سے لپٹ گئی تھی اور وہ رو رہی تھی جبکہ میجانی کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی. تایا جان سمیت باقی سب کو سانپ سونگ گیا تھا. آسان ان سب کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے تھے. کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ آپ لوگ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ارے سے تم کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. ہونا کیا ہے، تمہاری لاڈلی صبح کی گئی ابھی تک واپس نہیں آئی. تائی جان نے یہ بھی لحاظ نہ کیا تھا کہ وہ تکیارے گھر آئے. تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یونیورسٹی گئی ہے اور پھر کراچی کی ٹریفک آ ہی جائے گی، کہیں رستے میں ہوگی. حسان نے سکون کا سانس لیا. وہ واپس آتے ہیں جن کا گھر ہوتا ہے اور وہ اپنا گھر سمجھتے ہیں. یہ تمہاری بیٹی تو اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے گئی ہے. بڑا مان ہے نا تمہیں اپنی بیٹی پر، اور آج یہ ضرورت پڑ گئی ہے اپنی پہچان کی. تاجان کی بات نے حسان کو تھوڑا پریشان کیا تھا. ان کا دماغ سچ میں گھما تھا. شان سے پھوکی ٹوٹنے لگی. ایسا کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. حسان نے ہنا کے عریضے کی طرف دیکھا. عریضے رو رہی تھی جبکہ میجانی نے نظریں جھکا لی تھی. کوئی مجھے بتائے گا میرے جانے کے بعد یہاں ہوا کیا ہے؟ حسان غصے سے چلائے تھے. ہر شخص اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا. آج اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس سے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی. عریضے کیا ہوا ہے بچے؟ اب وہ اپنی بیٹی سے بہت نرمی سے پوچھ رہے تھے. عریضے جو باپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی ابھی نے صبح والی لڑائی کی پوری تفصیل بتانے لگی. یوسف نے بروقت ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. یوسف کی گرد اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑا پایا. اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو موڑا اور اس کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا. وہ دونوں پریشانی سے یوسف کو ہی دیکھ رہے تھے. وہ لوگ بھی کوئی پروفیشنل نہیں تھے. ان کے پاس ہتھیار کے نام پہ صرف ایک چاقو ہی تھا. اس بات کا اندازہ یوسف کو پہلے ہی کر لیا تھا. بھاگو یہاں سے، ورنہ تمہارا یہ چاقو تمہارے سینوں میں اتار دوں گا. یوسف نے چاقو سے اشارہ کرتے ہوئے بولا. اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے. وہ دونوں بھی گڑبڑا گئے، اسی لیے وہاں سے بھاگتے بنے. یوسف نے پلٹ کر شانزے کو دیکھا جو ابھی تک اس کے پیچھے چھپی صدمے کی حالت میں تھی. یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا شانزے نے اپنا سر یوسف کے سینے سے ٹکا لیا تھا. وہ خود قابو نہیں کر سکی تھی. خود کے سارے بند جو اس نے پچھلے کچھ گھنٹوں سے خود پہ باندھے ہوئے تھے وہ سارے ٹوٹ گئے تھے. اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ یوسف میں ہونے والی لڑائیاں بھی نہیں جو ان کے درمیان ازل تھیں. اگر کچھ یاد ہوتا یہ یوسف نہ ہوتا تو شاید وہ زندہ نہ ہوتی. اسی لیے اس وقت نجات دہنا ثابت ہوا تھا. حسان بالکل خاموش تھے، اپنے خیالوں میں مصروف جنگ. جب ہی نہ ان کے پاس آ کر بیٹھی. پلیز مجھے معاف کر دیں. ان کی شرمندگی ان کے چہرے سے واضح تھی. حسان نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا. کیوں کہا تم نے وہ سب؟ ہنا کو لگا وہ رو رہے ہیں. وہ تڑپ گئی تھی. آج سے پہلے تو حسان کو کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا. حسان میں غصے میں تھی، میرے منہ سے نکل گیا. یہ سب میں نہیں کہنا چاہتی تھی. ہنا اب پھر رو رہی تھی. کیا کبھی تم نے عریضے کو یہ سب کہا؟ حسان ان کے سامنے سراپا سوال بن گئے تھے. میجانی نے نظریں چرائیں تھی. نہیں نا، کیونکہ تم جانتی ہو عریضے تمہاری بیٹی ہے اور تم شانزے نہیں. میں جانتا تھا آج یا کل ایسا ہوگا، پر تم کرو گے یہ نہیں جانتا تھا. آج تم نے میری برسوں کی محنت کو خاک کر دیا. میں اس بن ماں باپ کی بچی کو اس لیے گھر لایا تھا کہ مجھے لگا اسے ایک گھر کا سکھ دے سکتے ہیں، پر مجھے کیا پتا تھا میری وجہ سے وہ اس ذہنی ذیت کا شکار ہوگی. تم اس سے نہیں بیٹی مانتی تھی تو بول دیتی، میں اس کو واپس چھوڑا تھا. یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی سوچا کیا محسوس کیا ہوگا اس نے؟ احسان بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ انہیں روتا یا ٹوکتا، جبکہ میجانی صرف رو ہی رہی تھی. احسان میں مانتی ہوں غلطی میری ہے، وہ ہماری بیٹی ہے.
आप मेरी नीयत पे शक नहीं कर सकते। मैंने पाला है इसे, आपने देखा है मेरी मोहब्बत को, इसलिए फिर आप कैसे ही कह सकते हैं कि वो मुझे अरीज़े की तरह अजीज़ नहीं है? वो अब बिलक बिलक कर रो रही थी। अच्छा, अब रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, मैं देखता हूँ इसे। किसान को अपने लफ्ज़ की सख्ती का एहसास हुआ, तभी इनके आंसू साफ करते हुए बोले, फौजी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी चलते हैं। वो दोनों दरवाजे से बाहर नहीं निकले थे कि जब मीजानी ने सच्चे दिल से इसके मिल जाने की दुआ की थी। 8 बज गए थे, लेकिन अभी तक कोई खैर खबर नहीं आई थी, ना शानज़े की और ना ही पापा की। और वजी को अरीज़े को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सामने से आते पापा और वजी नजर आए थे। पापा, कुछ पता चला? अरेजे अरेजे ने बाप से पूछा था। मीजानी नजरों ने ही सवाल किया था। इस सवाल के जवाब में वो सिर्फ नाम ही सर हिला सके थे। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चली गई है। इनके चेहरे पे परेशानी साफ वाज़ेह थी। अब क्या करेंगे? मैं कैसे माफ़ करूँगी खुद को? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? प्लीज़ आप इसे ढूँढ लाएँ, कहीं से भी प्लीज़। मिजानी आप एहसान की मिन्नत कर रही थी। मेरे ख़्याल है चाचू हमें अस्पताल में पता कर लेना चाहिए। नहीं, नहीं, अल्लाह ना करे मेरी शांसे को कुछ हो। उन्होंने वजी की बात काटी थी। तुम परेशान हो, मिल जाएगी हमारी बेटी। एहसानी ने तसल्ली दी थी। बस अब एक ही हल है, हमें पुलिस में जाना होगा। एहसान की आवाज़ ने सब पर बम गिराया था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।